Yes, students, please confirm. Please write in the chat box. Am I audible? Okay. So, a very good morning to all of you. Yes, Pankaj, I think it's audible here. I have also cross-checked. So, it's audible. Please check from your side. I think it's audible. Okay. So, जनरल इंग्लिश क्लास विल आल्सो बी देयर ऑन फ्राइडे. तो ऐसे ही शेड्यूल चलेगा. 3 दिन तो ये है और इसमें फ्राइडे को जनरल इंग्लिश भी होता है. ठीक है. So, quant reasoning we have done this week. Now, GK we are going to do. Okay, so we will cover all center and state government exams. Clear, students? So let's start with let's proceed what we have done last time also, and I will give I will say that is a brief review, brief preview about what we have done last week, and we will start with some more important, I will say, personalities, that is newsmaker, that is person in news. Okay, okay, so that we will do today. So let's start. I will also upload in the description of this video this PDF also of today, so you can access from there. Okay, so briefly, you can have a look. Those who have joined today only. So what we have done. Okay, okay, Pankaj. These classes will go on. These classes will go on as per this schedule. So these will be live regular classes that will cover all center and state exams. So you must have seen that in the chapter of calendar in reasoning section, I have covered all the previous year questions that have been asked in the calendar in various exams. I'm not saying that I am covering only for SSC, SDO, JE, other state center. I have tried to cover all varieties of question. Okay, so you can rely on these classes for any of the exam for non-technical section. Okay, so now this is GK. I have already, because before studying about India, you must know the persons who are important for us, who are actually running the country, and who are uh, occupying the various posts, various important positions in our country. So they are important for us. So before studying India or before studying any country, so you must know who are the which are the various who are the various important persons, so that are in the government or various government organizations. So of course this will who's who is the topic, and I have discussed this slide also. So last two lectures are already available on YouTube. Okay, so today we are going to discuss. So these ministers we have discussed, prime ministers, presidents we have discussed, vice president we have discussed. So this we have discussed already. Constituencies are important of cabinet ministers, prime minister. Okay, defense minister, cabinet ministers and prime minister constituency are important. Question can be asked. Okay, so these slides I have already covered. Then these 8 UTs, who are the lieutenant governors and administrators, there. Okay, then CMs of various states. As you know, today there are 28 states only. Okay, and 8 UTs are there. So these we have done. Judges of Supreme Court, maximum strength can be, that is, I will say, that is 30 plus 1, so that is 31. And only lady judge in the Supreme Court at present is Indira Banerjee, and who is the Chief Justice of India, that is Justice NV Ramanna, जो कि अपने आप में एक करंट अफेयर है.
ठीक है, तो अपने आप में ही एक करंट अफेयर है ये, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये न्यूज में थे अभी रिसेंटली। ठीक है, देन सो एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 27 सिटिंग जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, मैक्सिमम सेक्शन स्ट्रेंथ इज 31। ओके, देन दिस इज रिलेटेड टू डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ओके, देन एमपीज, member of parliament, Rajya Sabha, there are two houses, Lok Sabha, lower house, upper house, and parliament building is known as Sansad Bhavan, again very important। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए? जो दो एडिशनल मेंबर्स जिसे कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे उसे एबोलिश कर दिया गया थ्रू 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो अब लोकसभा की जैसे 552 थी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिटिंग कैपेसिटी अब कितना रह गया? दैट इज 550। सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। ओके, डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा 550 250। ओके, देन दिस कंपोजिशन टर्म 5 ईयर 6 ईयर, क्वालिफिकेशन एमपी के लिए लोकसभा 25 ईयर्स, राज्यसभा 30 ईयर्स। ओके, प्रिसाइडेड बाय स्पीकर, प्रिसाइडेड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, elections directly elected by people, elected by, I will say, state legislative assemblies and state legislative council। okay, then sessions तो कौन सी लोकसभा चल रही है अभी करंट में? दैट इज 17th लोकसभा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो कितनी स्टेट्स में देर आर, आई विल से, एमएलसीज, दीज आर, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। सो वन इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अदर वन इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जैसे पार्लियामेंट में होता है एक लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा अपर हाउस, तो सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही है। ठीक है, तो स्टेट में भी किसी में क्या होगा? एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, विधानसभा। ठीक है, लोअर हाउस और अपर हाउस क्या होगा? विधान परिषद। सो दैट इज अपर हाउस, तो जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं। तो अभी प्रेजेंट में किसी भी स्टेट में एक गवर्नर होगा और एक या दो हाउसेज हैं। तो जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स हैं। एम आई क्लियर? तो विधानसभा एंड विधान परिषद बोथ एग्जिस्ट। so that is legislative assembly also and legislative council also। तो वेस्ट बंगाल में अभी कह रहे हैं कि अभी हम क्या कर देंगे, वहां का लेजिस्लेचर भी बाई कैमरल कर देंगे। तो ये जो 6 स्टेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इससे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अभी तक दो ही लेडी स्पीकर रही हैं, श्रीमती मीरा कुमार रही हैं और सुमित्रा महाजन रही हैं। और करंट में स्पीकर कौन है लोकसभा के? दैट इज ओम बिड़ला, 17th लोकसभा स्पीकर। कहां से आते हैं ये? कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से? कोटा बूंदी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? बीजेपी। पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलांकर। अगेन अ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, स्टैटिक पार्ट। ओके, तो सिमिलरली आप ये लिस्ट देख सकते हैं। तो दिस इज, आई विल से, यस, डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। सो अगेन आई हैव, तो लीडर ऑफ द हाउस कौन है? ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा की बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी बीजेपी से। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वेकेंट है। ओके, एंड यहां पर कौन है लीडर ऑफ द हाउस? राज्यसभा में थावर चंद गहलोत। और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस से मल्लिका अर्जुन खड़गे। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। चेयरमैन कौन है? वेंकैया नायडू, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स हमारे लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। So that is Harivansh Narayan Singh. So that is Deputy Chairman of Rajya Sabha. So ये this is important. So this is important. So this is Dr. Rajiv Kumar. So that is again important for us. Niti Aayog, which was, that is 1st January 2015. Okay, so it has replaced Planning Commission. So you can see this slide.
Okay, so Niti Aayog, National Institution for Transforming India, and formed on 1st January 2015. Directly questions asked, directly questions have been asked from Niti Aayog. इसकी फॉर्मेशन डेट और ईयर पर फॉर्मेशन ईयर पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। किसने एस्टेब्लिश किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एम क्या है? इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, गवर्निंग काउंसिल में सीएम ऑफ ऑल स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज, ठीक है। चेयरपर्सन के नीचे कौन होगा? एक वाइस चेयरमैन होगा जिसे अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। So Dr. Rajiv Kumar is important for us, Vice Chairman Niti Aayog. Then Election Commission, कौन है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सुशील चंद्र, ठीक है। तो ये करंटली न्यूज में भी थे। अगर मैं बताऊं कि न्यूज मेकर में अगर मैं अलग से करवाऊं या रेदर देन मैं पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा दूं, तो सुशील चंद्रा को रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया। ओके, और करंट में एक ही इलेक्शन कमिश्नर है अभी, राजीव कुमार। एक और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा निर्वाचन सदन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बिल्डिंग का है न्यू दिल्ली में, जिसे निर्वाचन सदन भी बोला जाता है, ठीक है। एक ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए। कौन से आर्टिकल के अंडर? दैट इज 324। ओके, तो कितनी टर्म होगी ये सारा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपको। कब फॉर्म हुआ था हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? दैट इज 25 जनवरी 1950। हर साल आप 25 जनवरी को क्या करते हो? आप नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हो। सो दैट इज इंपॉर्टेंट डे फॉर अस। एंड एक इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं अशोक लवासा, जिन्हें की एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किया गया था। एक आईएएस ऑफिसर थे, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट नेम है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अगर इलेक्शन कमीशन आप स्टडी करते हो तो उसमें अशोक लवासा का नाम इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक आज हम स्टडी भी करेंगे। Then 11th National Voters Day recently we have celebrated in 2021. Okay. Then EVMs, this you all know. We will discuss more detail it in, I will say, Election Commission of India. Then GC Murmu is again an important name. So who is also the CAG of India, Comptroller and Auditor General of India. So in the last class I have discussed it in detail. कौन से आर्टिकल के अंडर बोला गया है कि कैग होना चाहिए? दैट इज आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जितने भी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स हैं उनका ऑडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स का कौन करेगा? दैट इज कैग। कैग कौन है? जीसी मुर्मू। ओके, तो ये जीसी मुर्मू पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये 14th कैग है इंडिया के। 2020 में ही इन्हें कैग बनाया गया है। देन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ज्यादा न्यूज में नहीं रहते हैं, ज्यादा न्यूज में नहीं रहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, फिर भी आपको नाम पता होना चाहिए। दैट इज श्री वाई के सिन्हा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC। ओके, तो इनके साथ इन्हें असिस्ट कर सकते हैं 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और उसके साथ 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। RTI यू मस्ट हैव, RTI का पता होगा तुम्हें, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। सो दैट इज केंद्रीय सूचना आयोग। कब फॉर्म हुआ था? ये भी 2005 में फॉर्म हुआ था। ओके, देन नेक्स्ट, so next was RBI. So in the last lecture I have in the detail I have discussed about this RBI also, that is Reserve Bank of India, ठीक है। बैंक नोट्स को इशू करना है, बैंकर टू गवर्नमेंट, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट बोला जाता है इन्हें। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसके लिए RBI फेमस है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। ओके, फर्स्ट गवर्नर कौन थे RBI के? ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? दैट इज CD देशमुख। करंट में कौन है? श्री शक्तिकांता दास। इन, ठीक है। तो प्रेजेंट कौन है? श्री शक्तिकांता दास, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, देन उसके बाद मैंने आपके साथ कुछ, आई विल से कुछ फोर्सेस के मैंने आपके साथ क्या किया था, जो डायरेक्टर जनरल्स हैं उनके नेम भी डिस्कस किए थे। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑफकोर्स उनमें से। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दैट इज अजीत डोवाल है। ओके, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, जो कि चीफ एडवाइजर हैं टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। सो अजीत कुमार डोवाल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस।
देन अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के, दैट इज के वेणुगोपाल, ठीक है। तो आई विल से इंडियन गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, in Supreme Court of India, that is primary lawyer in the Supreme Court of India, so that is Attorney General of India, and his name is K Venugopal, again very important person for us, ठीक है। देन कौन से आर्टिकल के अंडर बोला गया है कि ये होना चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज आर्टिकल 76(1), so that is important for us, okay। so के वेणुगोपाल इज द 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्हीं के साथ एक इनसे सब ऑर्डिनेट होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और वो कौन है करंट में, दैट इज तुषार मेहता। कौन है, तुषार मेहता। और ये क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सॉलिसिटर जनरल, ओके, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं हुआ, ठीक है। तो सो दैट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, तो इन्हें असिस्ट करने के लिए आपने सॉलिसिटर जनरल भी क्रिएट किया है, सो दैट इज सब ऑर्डिनेट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। So Tushar Mehta is again an important name for us. So Tushar Mehta, Solicitor General, and K Venugopal, Attorney General of India. So again, very important names for us. So I think you must have we in the last class also. So 15th Assam CM is Hemant Biswa Sharma. Again, very important name. इसे भी discuss करेंगे हम. And this is now this was the order of precedence. This is order of precedence. So president, vice president, prime minister, governor of state, former president, deputy prime minister, chief justice, speaker of Lok Sabha. So this list I have tried to discuss with you. Okay. Then रो we have discussed last time. रो के जो करंट में yes जो हैं अभी आई विल से दैट इज रो चीफ इज समंत गोयल। रो चीफ इज समंत गोयल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम, लास्ट टाइम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस समंत कुमार गोयल, ओके। न्यू रो चीफ। देन नेक्स्ट इज आईबी, एंड आईबी आईबी के चीफ कौन है, दैट इज डायरेक्टर ऑफ आई विल से आईबी, दैट इज अरविंद कुमार। अरविंद कुमार इज अगेन अ इंपॉर्टेंट नेम, ओके। Then Vice Chief of Army Staff, Vice Chief of Army Staff, Chief of Army Staff करंट में कौन है, that is मनोज मुकुंद नरवाने, okay। So that is General yes मुकुंद नरवाने। So and Vice Chief of Army Staff कौन है, that is करंट में कौन है अभी, that is चंडी प्रसाद मोहंती। So MM नरवाने कौन है हमारे, that is Chief of Army Staff। Vice Chief कौन है, that is चंडी प्रसाद मोहंती। Then Siddharth Mohanty takes charge as MD of LIC. LIC is again important for us. Okay, तो इसके चेयरमैन कौन है, MR कुमार, और सिद्धार्थ मोहंती को भी इसका MD बनाया गया। 3 MD हैं, ठीक है, ओके। तो 4 MD हो सकते हैं, एक चेयरमैन हो सकता है, तो यहाँ पर 3 MD में से एक MD कौन किसको बनाया गया अभी, सिद्धार्थ मोहंती। So again, TRAI, it is important for us. So that is Telecom Regulatory Authority of India. तो जितनी भी companies हैं like these Airtel and Jio and other companies, ठीक है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, इन टेलीकॉम कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक अथॉरिटी बनाई गई है, दैट इज TRAI, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी इसका चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया, दैट इज PD वघेला, ठीक है। ये भी ये क्या है, IAS ऑफिसर है गुजरात कैडर के, ओके। सो दैट इज इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस। मैं TRAI क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये न्यूज में रहता है, ठीक है। जो TRAI है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये न्यूज में रहता है ये बॉडी, ठीक है। तो PD वघेला का नेम आप काफी बार सुनेंगे, ओके। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस। देन NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ओके, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसके चेयरमैन कौन है करंट में, दैट इज परेश रावल। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, एक थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। देन
Rakesh Asthana, DG of BSF. Direct questions have been asked from these, I will say, forces. ठीक है, सो दीज आई विल से पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो जितनी भी हैं इसमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं काफी सारे एग्जाम्स में कि डायरेक्टर जनरल कौन है इनके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं हमारे लिए। ठीक है, तो राकेश अस्थाना अपॉइंटेड डीजी ऑफ बीएसएफ, तो अगेन इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस। सो बीएसएफ का पता है आपको। ठीक है, सो दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट सीआईएसएफ, नेक्स्ट वन इज सीआईएसएफ। सो इसके कौन है अभी करंट में डीजी, दैट इज सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल, अगेन इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस। सीआईएसएफ यू मस्ट हैव, जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, ठीक है, और जितनी भी गवर्नमेंट आई विल से पीएसयूज हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो काम देखते हैं दैट इज सीआईएसएफ। देखा भी होगा आपने। सो दैट आल्सो कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो सुबोध कुमार जायसवाल हैं इसके आई विल से डायरेक्टर जनरल, डीजी। नेक्स्ट इज सीआरपीएफ, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सीआरपीएफ, सो दैट इज आई विल से ब्लू कलर यूनिफॉर्म यू मस्ट हैव। तो इनके फर्दर बटालियंस हैं कोबरा, आरएएफ, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप। तो इसके डीजी कौन है, कुलदीप सिंह। अगेन वॉज इन न्यूज कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह का नेम न्यूज में था। ठीक है, तो इस साल आप जितने भी एग्जाम्स दोगे तो उसमें ये नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, सो ये चेंज होते रहते हैं, दीज नेम्स कीप्स ऑन चेंजिंग, बट इन्हें अपडेट करना जरूरी है। आपको एक या दो क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। एनएसडी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ठीक है, सो आल्सो कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ब्लैक कैट कमांडोज यू मस्ट हैव हर्ड रिलेटेड टू देम। सो एनएसजी के डीजी कौन है, दैट इज एम ए गणपति। एम ए गणपति, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अस। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ओके, तो कहां पर है, नेपाल भूटान बॉर्डर पर इन्हें डिप्लॉय किया जाता है। इसके डीजी कौन है देख लेते हैं एक बार, दैट इज कुमार राजेश चंद्र। कुमार राजेश चंद्र। ओके, सो दैट इज एसएसबी। देन असम राइफल्स को चेक कर लेते हैं, इंडो म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करती है ये फोर्स। एंड इसके जो डीजी हैं, सो दैट इज सुखदीप सांगवान। सुखदीप सांगवान, अगेन इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस। यूपीएससी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी, कब तक रहेंगे, 2022 तक। देन सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, कौन है इनका जो मेन लीडर है, दैट इज प्रसून जोशी। ठीक है, सो स्टैट्यूटरी फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सिनेमाज में और टीवी पर पब्लिकली एग्जिबिट करना है तो उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए आपको इस बॉडी से कि क्या दिखाना है आपको टीवी पर, सिनेमा में। तो उसके लिए एक बॉडी बनाई गई है, दैट इज सीबीएफसी। ठीक है, और रविंदर भाकर इसके सीईओ हैं। रविंदर भाकर न्यूज में थे, अगेन इंपॉर्टेंट नेम, दैट इज सीईओ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अगेन आई विल से वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। तो इसके चेयरमैन कौन है, शेखर कपूर। और ये कहां पर प्रेजेंट है, पुणे। कहां पर प्रेजेंट है ये, पुणे में। काफी ज्यादा न्यूज में रहता है एफटीआईआई, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंस्टीट्यूट ये। ठीक है, नाउ प्रेसिडेंट कौन है, अभी शेखर कपूर है। देखो इसमें बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज इसके प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, अनुपम खेर, गजेंद्र चौहान काफी ज्यादा न्यूज में थे, विनोद खन्ना, ठीक है, गिरीश कार्नाड, महेश भट्ट। तो काफी सारे पर्सन्स, श्याम बेनेगल, तो ऐसे काफी सारे पर्सन्स, ठीक है, जो कि काफी फेमस हैं, वो इसके क्या रह चुके हैं, इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ओके, देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, चेयरमैन ऑफ एसबीआई, दैट इज रिसेंटली न्यूज में थे, दैट इज दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। ओके, इंडियाज लार्जेस्ट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो ये 26th चेयरमैन है इसके। और अरुंधति भट्टाचार्य, फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ एसबीआई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ एसबीआई इज अरुंधति भट्टाचार्य। ठीक है, सबसे पहले कौन थे, जॉन मिठाई। ठीक है, और सबसे ज्यादा टाइम तक एसबीआई के चेयरमैन कौन रहे हैं, पीसी भट्टाचार्य।
और उसके बाद उन्हें गवर्नर ऑफ आरबीआई भी बनाया गया। इससे पहले एसबीआई का नेम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में से चेंज कर दिया गया। देन सो दिस इज चेयरमैन ऑफ एसबीआई। ओके, 55 1 जुलाई 1955 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, और दिनेश कुमार खारा इसके क्या हैं? करंट में इसके चेयरमैन है। देन सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, करप्शन को एड्रेस करने के लिए बनाया गया था 1964 में। देन करंट में सीवीसी कौन है हमारा? दैट इज संजय कोठारी। संजय कोठारी कौन है हमारे करंट में? सीवीसी हैं। देन कौन सी कमेटी ने बोला था कि सीवीसी होना चाहिए? के संथनम कमेटी। के संथनम कमेटी, और 1964 में इस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर इसे फॉर्म किया गया। अगेन पॉलिटी में से काफी डिटेल में पढ़ते हैं, अगर आपको ये पता है तो आप इसे बता सकते हैं। सिमिलर सिमिलर है इसका, आई विल से जो जो इसका वो है कंपोजिशन है, एक सीवीसी होगा और 2 विजिलेंस कमिश्नर होंगे। ओके, देन नबार्ड इंपॉर्टेंट बैंक फॉर अस। ओके, तो करंट में इसके जो चेयरमैन है दैट इज जी आर चिंताला। जी आर चिंताला। ओके, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, so this is again important for us, जी आर चिंताला, गोविंद राजुलू चिंताला। तो नबार्ड क्या है? एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है फॉर ओवरऑल रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स एंड एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। कब फॉर्म हुआ था? 1982 में। डायरेक्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम्स कि नबार्ड कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था? 1982 में। तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो जितने भी आरआरबीज हैं, आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ठीक है, सो दैट इज नबार्ड। तो नबार्ड के जो चेयरमैन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और हेडक्वार्टर कहां है नबार्ड के? दैट इज मुंबई, इंडिया। Then I will start the today's lecture from here. So today's lecture I am going to start from here. So that is World Bank. Again, I will say these are some of the bodies which have been in news. So we are going to cover these. Okay. So some persons from these organizations, associated from these organizations, have been in news. Okay, person in news, newsmaker. Okay, important personality for us. So let's start today's lecture from here. Okay, first one is World Bank. Why World Bank and IMF are important for us? So first name is Rajesh Khuller, जिन्हें की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो वर्ल्ड बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया, आई विल से इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका की तरफ से को रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको? राजेश खुल्लर को क्या किया गया? अपॉइंट किया गया। सो दैट इज इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस। सो दैट इज राजेश खुल्लर। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस। तो सिमिलरली एक और नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एडीबी की तरफ से, दैट इज समीर कुमार खरे, अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये दोनों पर्सन न्यूज में रहे हैं यार, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है, ये आईएएस ऑफिसर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब सर एडीबी क्या है? एडीबी के हेडक्वार्टर कहां पर हैं? कितने मेंबर्स हैं? क्या फंक्शन है? वर्ल्ड बैंक का क्या फंक्शन है? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन किसी बॉडी के साथ एसोसिएट हुआ है तो उस बॉडी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि उस पर्सन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे वो। ठीक है, अगर स्टैटिक पार्ट से उसे क्वेश्चन पूछना है तो वो कहां से पूछेगा? उस बॉडी से जहां पर जिसकी अपॉइंटमेंट हुई है उस पर्सन की, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अदर देन पर्सन, तो थोड़ा सा हम बॉडी के बारे में भी स्टडी करेंगे, और पर्सन का नेम तो इंपॉर्टेंट है ही। यस और नो? ओके, सो थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या करता है? लोन्स प्रोवाइड करता है to low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects. Capital means I will say long term projects. लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक क्या करता है? कंट्रीज को क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट, एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट। तो वर्ल्ड बैंक इज इंपॉर्टेंट फॉर अस।
ओके। नाउ जो वर्ल्ड बैंक है, इसके जो आई विल से इसकी जो बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर है, वो कहां पर है? दैट इज वाशिंगटन डीसी में। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी आपको पता है कहां पर है? दैट इज यूएसए। नाउ इसके मेंबर्स कितने हैं? 189। फर्दर इसकी कुछ आई विल से फर्दर कुछ इसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईबीआरडी, आईडीए। तो इनके कितने मेंबर्स हैं? 189 आईबीआरडी, 173 आईडीए। आई विल डिस्कस देम इन डिटेल व्हेन आई विल कवर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू यूएनओ। तो सभी के फंक्शन करेंगे, कितने किसके मेंबर हैं, दैट वी विल डिस्कस। ओके। अब इसमें क्या है कि लो इंटरेस्ट रेट पे वर्ल्ड बैंक क्या करता है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि क्या करता है? लो इंटरेस्ट रेट पे आपको क्या करता है? कंट्रीज जो गवर्नमेंट ऑफ कंट्री जो कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है उनको लोन्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। ओके। देन इसमें ये दो इंस्टीट्यूशन से मिलके बना है। इट कंप्राइजेस ऑफ टू इंस्टीट्यूशंस, दैट इज आई विल से आईबीआरडी एंड आईडीए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आईबीआरडी एंड आईडीए किससे रिलेटेड है? दैट इज वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। ठीक है। देन इनका जो मेन गोल है वर्ल्ड बैंक का, जो करंट में मेन गोल चल रहा है, दैट इज रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी को कम करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? सो दिस इज वन ऑफ दिस। ठीक है, तो फाइनेंस करना है लो इंटरेस्ट रेट पे, जो जैसे कोई प्रोजेक्ट है, कोई हाईवे प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो उससे उसके थ्रू क्या होगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और उस कंट्री की क्या होगी? डेवलपमेंट भी होगी। तो तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? लो इंटरेस्ट रेट पे क्या करता है? ऐसे कंट्रीज को लोन्स प्रोवाइड करता है। तो इसके हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है यार, वॉशिंगटन यूएस में है। ठीक है, आईबीआरडी के 189 मेंबर्स हैं, 189 कंट्रीज, और आईडीए के 173। अब इसमें कुछ और नेम इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। देखिए यहां पर डेविड डेविड मेलपॉज, डेविड मेलपॉज करंट में इसके प्रेसिडेंट हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। अगर मुझे यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन, देखो जो स्टैटिक पार्ट होता है उसमें यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आप जब प्रीवियस ईयर देखोगे किसी भी आई विल से किसी भी एग्जाम के, तो उसमें यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, उसके चीफ कहाँ हैं, उसके चीफ का क्या नेम है। ठीक है, और उसके बाद करंट में न्यूज में क्यों रहा है। ठीक है, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, मेंबर्स कितने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ लेगा स्टैटिक पार्ट से। ठीक है, तो अगर आप मुझे यूएनओ की कोई ऑर्गेनाइजेशन उठानी है तो मैं वर्ल्ड बैंक उठा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि राजेश खुल्लर, एडीबी उठा सकता हूँ। ठीक है, समीर कुमार खरे न्यूज में थे, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक बार मैं इनका स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज कर लूं। यस और नो? तो स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेविड मेलपोज प्रेसिडेंट, अंशुला कांत एमडी एंड सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, अंशुला कांत, इंपॉर्टेंट फॉर अस, अंशुला कांत। देन कार्मेन रीनहर्ट, दैट इज चीफ इकोनॉमिस्ट। तो ये दो नेम बड़े इंपॉर्टेंट, आई विल से डेविड मेलपोज एंड अंशुला कांत फ्रॉम वर्ल्ड बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। देयर मेंबर्स आर इंपॉर्टेंट, आईबीआरडी, आईडीए 189 एंड 173। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। इसका मेन एम क्या है वो मैं बता चुका हूं मैं। लो इंटरेस्ट रेट पे आपको क्या करना है? लोन्स प्रोवाइड करने हैं। एक फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से आई विल से किस किस से बना है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईएफसीबी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एमआईजीए मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये पांचों ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती हैं? वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाती हैं। इसमें से दो इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? आईबीआरडी एंड आईटीए। ठीक है, और 189 मेंबर्स आईबीआरडी के हैं और 173 किसके हैं? दैट इज आईडीए के हैं। ठीक है, देन उसके बाद आईएमएफ आ जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। आईएमएफ का आई विल से जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हायर होता है एज कंपेयर टू वर्ल्ड बैंक। ओके, और जो आईएमएफ है वो मॉनेटरी से रिलेटेड ज्यादा काम है इसका। प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, facilitate international trade, reduce poverty around the world, make resources available to members experiencing balance of payment difficulties, prevent and assist with recovery from international financial crisis. Let's say किसी कंट्री में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, तो किसके पास जाएगा वो हेल्प मांगने के लिए? फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, रिलेटेड टू आई विल से फाइनेंस। ठीक है,
तो वो जाएगा किसके पास, आईएमएफ के पास। जैसे इंडिया गया था 1991 में, जैसे इंडिया गया था 1991 में, तो आईएमएफ ने क्या सजेस्ट किया कि आप प्राइवेटाइज करो, आप प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करो। एम आई क्लियर और नो? तो उस टाइम इंडिया की हेल्प किसने की थी, इस बॉडी ने की थी, दैट इज आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अगेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अस। कब फॉर्म हुई थी, 1945 में। कब फॉर्म हुई थी स्टूडेंट्स, ये 1945 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो ये इसका लोगो है, आप ये देख सकते हैं। मेंबर्स कितने हैं, 190। इसके मेंबर्स कितने हैं, 190। मेंबर्स आर 190। ओके, सो अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगेन हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। इसके एमडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमडी और आई विल से चीफ इकोनॉमिस्ट, सो दैट इज क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि आईएमएफ के ये बताओ एमडी कौन है, दैट इज क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। ओके, एंड चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, अगेन इंडियन, सो अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अस। इंडियंस आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो कम से कम यार हम इंडियंस तो स्टडी कर लेना। अगर पर्सन इन न्यूज में मुझे स्टडी करना है, तो अगर मैं इंडियंस को स्टडी कर लूं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स। क्रिस्टिना जॉर्जिवा भी इंपॉर्टेंट है और गीता गोपीनाथ भी इंपॉर्टेंट है। यस और नो स्टूडेंट्स? तो ये है आईएमएफ। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है किसी कंट्री में, तो हेल्प कौन करता है, सो दैट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ। इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू वर्ल्ड बैंक। ओके, तो इनके जो पर्पस और फंक्शन है उसमें डिफरेंस है। डिफरेंस अगर मुझे बताना है तो मॉनेटरी सिस्टम, किसी कंट्री का जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको स्टेबलाइज करने के लिए आईएमएफ बनाया गया है। ओके, और वर्ल्ड बैंक तो पॉवर्टी कम करने के लिए बनाया गया है। और किस कौन सी कंट्रीज को हेल्प करता है, मिडल इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज। यस सुनो, तो ये मेन डिफरेंस है यार। और भी काफी सारे डिफरेंसेस हैं जब आप इकोनॉमी में पढ़ते हो, तो ये सारे डिफरेंसेस आप बता सकते हो। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ठीक है, किसी कंट्री की जो करेंसी है उसका जो एक्सचेंज रेट है वो अगर काफी ज्यादा अफेक्ट हो गया तो कौन देखता है, आईएमएफ उसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ज्यादा बड़े लोन्स लेने हैं, ज्यादा लार्ज लोन्स लेने हैं, तो कौन देता है, आईएमएफ देता है। ठीक है, स्मॉल लोन्स के लिए कौन है, दैट इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं वर्ल्ड बैंक के। इंडिया में भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स को फंड करता है वर्ल्ड बैंक। एम आई क्लियर और नॉट? तो इंपॉर्टेंट है दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। यस, वर्ल्ड बैंक कब क्रिएट हुआ था, 1944 में। एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी अलोंग विद आईएमएफ। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। जब यूएनओ स्टडी करते हो तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस आप स्टडी करते हो। इसे स्टडी करेंगे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जब मैं 2 से 3 लेक्चर में उसे खत्म करूंगा, फिनिश करूंगा, देन आई विल डिस्कस अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस। तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनओ की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है तो उससे रिलेटेड है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। कब हुई थी, 1944 में हुई थी। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज ट्रेडिशनली एन अमेरिकन। और दोनों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहां पर हैं, वॉशिंगटन डीसी में है, और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये है इसमें मेन। ओके, तो 190 कंट्रीज मेंबर हैं। क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा एमडी हैं और चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ। एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप में फर्दर 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। ठीक है, तो 189, 173, 189 है, उसके 190 हैं, काफी क्लोज है 189 190, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, सो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। 1944 में ये फॉर्म हुआ है। ये 1945 में हुआ है, ये थोड़ा ध्यान रखना। आईएमएफ 1945 में फॉर्म हुआ है, वो 1944 में फॉर्म हुआ है। ओके, देन आ जाते हैं अभी। ये जो न्यूज थी, ये न्यूज मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूं। दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। राजेश खुल्लर हैज बीन अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इन वर्ल्ड बैंक। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, दैट इज 25 हो सकते हैं। तो आई विल से बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, श्रीलंका को रिप्रेजेंट करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, दैट इज वर्ल्ड बैंक ग्रुप में एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सो दैट इज राजेश खुल्लर। देन समीर कुमार खरे को भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, कहां पर, एडीबी में। ठीक है, और थोड़ा सा एडीबी के बारे में देख लेते हैं। इट इज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक। नेम से काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है ये, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट देखना है, तो उसके लिए एक बैंक बनाया गया है। तो जैसे वर्ल्ड बैंक है सभी कंट्रीज के लिए, ज्यादातर कंट्रीज उसका मेंबर है, तो सिमिलरली एशिया में जितनी कंट्रीज हैं
ठीक है, अगर उनको फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम है तो ये बैंक वहां पर हेल्प कर सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन December 1966, हेडक्वार्टर्ड इन मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस। तो मनीला कैपिटल है फिलीपींस की, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, तो ध्यान में रखना है। ओके, तो थ्रू आउट एशिया इनके काफी सारे ऑफिसेज हैं, और इसके अलावा 68 मेंबर्स हैं। तो इसका जो मॉडलिंग की गई है दैट इज क्लोज टू वर्ल्ड बैंक, जो कि जैसे वर्ल्ड बैंक फंक्शन करता है, वर्ल्ड बैंक का जो काम है, तो सिमिलर टू सिमिलर ऑफ एडीबी। तो 2020 तक जापान एंड यूएस सबसे ज्यादा इसका शेयर होल्ड करते हैं। ऑफ कोर्स जो ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, जो ज्यादा इसमें आई विल से फाइनेंस में हेल्प करेगा, उसका शेयर ज्यादा होगा। सो दैट इज एडीबी में दैट इज जापान एंड यूएस। तो ये शेयर बताया गया है, चाइना इतना, इंडिया 6.3%। ओके, तो एम क्या है एडीबी का? सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू रिड्यूस पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक थ्रू इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंट सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन। तो सेम फंक्शन है कि पॉवर्टी कम करनी है, ठीक है, पॉवर्टी कम करनी है कंट्रीज में, जैसे कि वर्ल्ड बैंक में था। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, लोन्स, ग्रांट्स, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर। तो प्रोजेक्ट्स को ऑफकोर्स ये भी फंड करता है बैंक, ठीक है। तो ये ग्रांट्स, लोन्स प्रोवाइड करता है कंट्रीज को, मेनली एशिया की जो इसकी मेंबर्स हैं, हेल्पिंग नेशन प्रिपेयर फॉर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और बेटर मैनेज देयर नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज अदर एरियाज। ओके, तो इसके फॉर्मेशन कब हुआ है? 1966 में हुआ है। ओके, कहाँ पर है इसके? मनीला, फिलीपींस में हेडक्वार्टर है, 68 मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट कौन है? दैट इज दिस आसाकावा, जो कि एक जापानीज हैं, आसाकावा, ठीक है, मसात्सुगु आसाकावा। सो एक जापानीज हैं जो कि इसके क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। तो एडीबी का फॉर्म हुआ 1966 में, फॉर्म हुआ। करंट में कितने मेंबर्स हैं? 68। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एडीबी। सेम फंक्शन है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है थ्रू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 68 मेंबर्स हैं। आसाकावा जापानीज एक पर्सन है जो कि क्या है? इसके क्या है? प्रेसिडेंट हैं। और अभी करंट में न्यूज में क्यों था? क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, इंडिया से, जो कि एक आईएएस ऑफिसर भी हैं, उनको इसका एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, दैट इज समीर कुमार खरे। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। देन नेक्स्ट वन इज रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट वन इज रेलवे बोर्ड। तो चेयरमैन कौन है रेलवे बोर्ड के? चेयरमैन एंड सीईओ, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर है, ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर आप पता है रेल भवन। और इसके जो चेयरमैन और सीईओ हैं वो हैं सुनीत शर्मा। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है? सुनीत शर्मा, अगेन इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस। ओके, तो ये न्यूज में थे रिसेंटली स्टूडेंट्स, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड किसके अंडर है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एंड सुनीत शर्मा बने रेलवे बोर्ड चेयरमैन, अगेन इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस, सुनीत शर्मा, रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। तो ये कब एक बोर्ड है? दैट इज आई विल से डेयरी से रिलेटेड, और इसकी फॉर्मेशन 1965 में हुई थी। वर्गीस कुरियन ने इसकी आई विल से वो फाउंडर थे। हेडक्वार्टर कहाँ है? आनंद, गुजरात, आनंद, गुजरात। तो व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क से रिलेटेड, यू मस्ट हैव हर्ड इट अबाउट, ठीक है। तो वर्गीस कुरियन, वी कुरियन का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1970s में काफी इंपॉर्टेंट था ये, आई विल से दैट इज व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो उससे रिलेटेड वर्गीस कुरियन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, so again it was in news, and it is an institution of national importance set up by an act of parliament। मेन ऑफिस का है? आनंद, गुजरात में है, ठीक है। एंड board was created to finance sport and sport producer owned and controlled organization to strengthen farmer cooperatives and support national policies। ओके, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो मैं इसमें यही बताना चाहता हूं कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, ये डेयरी से रिलेटेड, जो हमारा डेयरी होता है, ठीक है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, उसको डेवलप करने के लिए ये बनाया गया है।
उससे रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? आनंद, गुजरात में। अगेन न्यूज में थी ये, ठीक है। इसकी सब्सिडरीज हैं आनंद मदर डेयरी दिल्ली में है, ठीक है। आईडीएमसी लिमिटेड आनंद गुजरात में, मदर डेयरी दिल्ली में है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसकी सब्सिडरीज हैं, इनके नेम आप ध्यान में रख सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट क्या है कि फाउंडर कौन थे, कब फाउंडेशन हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फंक्शन क्या है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट इज बीसीसीआई। नेक्स्ट इज बीसीसीआई ऑलवेज इन न्यूज। जब आप न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स के पेज पे जाते हैं तो बीसीसीआई से रिलेटेड न्यूज रहता ही रहता है वहां पर। तो बीसीसीआई के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। ओके, सो बीसीसीआई का देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की। किसकी जुरिस्डिक्शन में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो हु इज आवर करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर? सो दैट इज, आई विल से, यस, सो हु इज आवर करंट, अगर मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करूं, सो दैट इज किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू हैं हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ठीक है। तो बीसीसीआई गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, ठीक है। एंड तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ हैं? दैट इज वानखेड़े स्टेडियम, आई विल से वानखेड़े स्टेडियम में इसके हेडक्वार्टर हैं, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड आई विल से, कब ये एस्टेब्लिश हुआ था? 1928 में। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1928 में। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अस। यस, इसके प्रेसिडेंट हैं वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रेसिडेंट कौन है करंट में? सौरव गांगुली। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला। तो प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी जय शाह, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, सन ऑफ अमित शाह, दैट इज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन मेंस कोच, सो क्वेश्चन आ सकता है कि मेंस कोच कौन है क्रिकेट का? सो दैट इज रवि शास्त्री। विमेंस कोच, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रोमेश पवार। रोमेश पवार अगेन क्रिकेट खेल चुके हैं इंडिया की तरफ से। रोमेश पवार विमेंस कोच हैं for cricket in India. So that is this Romesh Pawar and Ravi Shastri are important name for us. President of BCCI that is Saurav Ganguly. कब फॉर्म हुआ था? 1928 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। किसकी एफिलिएशन है? दैट इज आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे थे? ग्रैंड गोवान एंड एंथनी डी मेलो इसके फर्स्ट सेक्रेटरी रहे थे। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये कोचिज हो जाते हैं। यहाँ पर कोचिज का नेम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें बीसीसीआई कुछ डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स करवाता है, उसके नेम इंपॉर्टेंट है। अलग से आप स्टडी करते हो कि वेरियस स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज एंड ट्रॉफीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, क्वेश्चन आता है स्टैटिक पार्ट में, ठीक है। तो स्टैटिक पार्ट में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो यार, जो ये मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट है, इसमें देखो ध्यान से। तो यहाँ पर रणजी ट्रॉफी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रणजी ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद दिस क्रिकेट। ईरानी कप अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देओदर ट्रॉफी, आईपीएल सभी को पता है, देओदर ट्रॉफी इंपॉर्टेंट। दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो कुछ डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं, मेंस डोमेस्टिक टूर्नामेंट फॉर क्रिकेट, ठीक है, जिन्हें की बीसीसीआई करवाता है, ये इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, रणजी ट्रॉफी, रानी कप, देवधर ट्रॉफी, आईपीएल, दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो ऐसे ही काफी सारे टूर्नामेंट्स हैं जो कि किसी ना किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। कई बार उसमें करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या स्टैटिक पार्ट से भी पूछ लिया जाएगा। ओके, विमेन्स डोमेस्टिक क्रिकेट, तो ये कुछ आई विल से कि जिन्हें करवाता है बीसीसीआई। सीनियर विमेन्स चैलेंजर ट्रॉफी, विमेन्स वनडे लीग, विमेन्स टू टी20 लीग, टी20 चैलेंजर कप, टी20 चैलेंज, विमेन्स आईपीएल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। जो और इंपॉर्टेंट है दैट इज मेल जूनियर लेवल टूर्नामेंट्स। मेल जूनियर लेवल टूर्नामेंट्स, दैट इज सीके नायडू ट्रॉफी फॉर अंडर 23, सीके नायडू ट्रॉफी रिलेटेड टू क्रिकेट, ठीक है। देन कूच बिहार ट्रॉफी एंड वीनू मानकंड ट्रॉफी, अंडर 19, अंडर 19, अंडर 23 वनडे ट्रॉफी एंड सीके नायडू ट्रॉफी दैट इज अंडर 23। इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से, क्वेश्चन आए भी हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। सीके नायडू ट्रॉफी, कूच बिहार, वीनू मानकंड ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे, ठीक है, दुलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, रणजी। रणजी सबको पता है, यस और नो?
तो इंपॉर्टेंट है ये डोमेस्टिक क्रिकेट कॉम्पिटिशंस जिन्हें की बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करवाता है। ठीक है, जूनियर लेवल, सीनियर लेवल, ये पता होना चाहिए आपको। यस और नो। नाउ थोड़ा सा स्पेस के बारे में पढ़ लेते हैं। साइंस से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके आई विल से अगेन जो चीफ्स हैं जो उन्हें हेड कर रहे हैं उनका नेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं एक बार। इसरो सभी को पता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, एक नेशनल स्पेस एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। कहां पर है? बेंगलुरु। तो स्पेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज करनी है, सैटेलाइट्स भेजने हैं या स्पेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज करनी है, स्पेस एक्सप्लोरेशन करनी है, इंडिया की तरफ से हर कंट्री का होता है। ठीक है, स्पेस से रिलेटेड कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा। नासा यू मस्ट हैव हर्ड। ठीक है, देन दिस इज फ्रॉम इंडिया, सो दैट इज इसरो। इसरो इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस। हमेशा न्यूज में रहेगा, इसरो ने ये सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, इसरो ने ऐसा कर दिया, ऐसी फाइंडिंग आई है। साइंस एंड टेक का जो सेक्शन होगा तो इसमें इसरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी न्यूज़पेपर अगर तुम चेक करोगे तो इसमें इसरो से रिलेटेड तुम्हें कोई ना कोई न्यूज दिखी जाती है। और हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन अगर साइंस एंड टेक से, सैटेलाइट से रिलेटेड पूछ लेंगे, ठीक है, कोई स्पेस मिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इसरो। ठीक है, तो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है ये? दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिससे कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली देखते हैं, ओवरसी करते हैं। और चेयरमैन ऑफ इसरो एज एग्जीक्यूटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, तो दो नेम। डायरेक्टली किसके अंडर आता है? डायरेक्टली ओवरसीन बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ इसरो, जो कि एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, कब फॉर्म हुआ था? 1969 में। 15 अगस्त 1969 में इसरो फॉर्म हुआ था। स्पेस एजेंसी है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका में है। ठीक है, चेयरमैन कौन है? दैट इज के सिवन। के सिवन। इन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। दैट इज रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, सो दैट इज नोन एज के सिवन। के सिवान इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान। ओके, नाउ अब इट इज वन ऑफ द 6 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड विच पोजेस फुल लॉन्च कैपेबिलिटीज। अपने आप में बड़ी बात है कि 6 ऐसी गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज हैं जिसमें कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी कंट्रीज के पास अपनी स्पेस एजेंसी है, नो। तो ऐसा वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया इज वन ऑफ देम। और ये ऐसी 6 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज में इसरो आता है जो कि फुल लॉन्च कैपेबिलिटी क्या करता है? पोजेस करता है। ओके, अब यहाँ पर कुछ लॉन्चिंग स्टेशंस इंपॉर्टेंट हैं। यार ऑफ कोर्स अगर आप सैटेलाइट कैरी करते हो, रॉकेट लॉन्च करते हो, तो उसके लिए कोई ना कोई आपके पास लॉन्चिंग स्टेशन होगा। लॉन्चिंग स्टेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो सर अगर इसरो मुझे स्टडी करना है, ठीक है, अगर मुझे इसरो स्टडी करना है तो उसके चेयरमैन तो ठीक है, ठीक है, के सिवान होंगे। के सिवान हैं जो कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है? ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। सतीश धवन, SHAR, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, यहां से आप क्या करते हो? सैटेलाइट्स लॉन्च करते हो। क्या करते हो आप? सैटेलाइट्स लॉन्च करते हो, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो स्पेस मिशन श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, इसके अलावा थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहां पर है? तिरुवनंतपुरम, जो कि कैपिटल है केरला की। यहां से भी लॉन्च किए जाते हैं। इसके अलावा एक और जगह प्रपोज की गई है, दैट इज कुलशेखरा पट्टनम। कुलशेखरा पट्टनम इसे प्रपोज किया गया। मेन एक्टिविटी कहां से होती है? दैट इज श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। So this is Shri Harikota in Andhra Pradesh and this is this कुलशेखरा पट्टनम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा मैंने थुम्बा इक्वेटोरियल भी बताया आपको, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि कहाँ है? केरला में है, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, अभी क्या है जो आप लॉन्च करते हो उसको ऐसे जाना पड़ता है, श्रीलंका के ऊपर से नहीं जाना पड़ता, तो उसके लिए एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डॉग लेग, इसे क्या बोला जाता है? डॉग लेग मैन्यूवर भी बोला जाता है।
ठीक है, तो आप किसी लैंड मास के ऊपर से आपका जो आप क्या करोगे वो क्रॉस नहीं करेगा। जो भी आपने रॉकेट लॉन्च किया है दैट इज कैरिंग सैटेलाइट्स एंड अदर थिंग्स, तो किसी लैंड मास को वो क्रॉस नहीं करेगा अपने पाथ में। तो आप क्या करते हो, उसको ऐसे शार्प टर्न लेना पड़ता है। ठीक है, और जो कि क्या करता है, उसकी वजह से काफी फ्यूल भी कंज्यूम होता है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, जैसे यहां पर कुलशेखरापट्टनम में भी आपने प्रपोज किया है कि ये डॉग लेग मैन्यूवर नहीं होगा उस केस में, तो हम यहां से भी लॉन्च कर सकते हैं। यस और नो? ठीक है, तो ये तमिलनाडु में है, तो यहां पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, टूटीकोरिन के पास है ये। When rocket are launched from Kulsekhara-Patnam, this maneuver is not required as there is no landmass along the flight path in the southward direction. Am I clear or not? So in polar mission at PSLV, Shri Harikota must perform a dogleg maneuver to avoid flying over Sri Lanka to protect it from rocket debris. ठीक है, तो रॉकेट क्या करता है, डेब्रीज, ठीक है, डेब्रीज भी करता है। ठीक है, तो डेब्रीज निकलती हैं तो वो श्रीलंका को अफेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फ्यूल देना पड़ता है ये टर्न करवाने के लिए। अगर यहां पर होगा कुलशेखरापट्टनम में तो डायरेक्टली आप ओशन पे से जाएंगे, किसी कंट्री के ऊपर से जाना नहीं पड़ेगा। तो इस करके इसे प्रपोज किया गया है। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं यार तीनों, मैं बताऊंगा। श्री हरिकोटा हो गया, देन थुम्बा वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिवनंतपुरम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन का है त्रिवनंतपुरम में, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सिमिलरली कुलशेखरापट्टनम जो कि प्रपोज किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, जो कि मैंने बताया भी है आपको। देन कैसे ये बना था? ठीक है, पहले इसे क्या था, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च ये स्टेब्लिश की जवाहरलाल नेहरू, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ऑन द अर्जिंग ऑफ द साइंटिस्ट दैट इज विक्रम साराभाई। ठीक है, तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हैं इंडिया, ये सॉरी, तो स्पेस से रिलेटेड जो नाम आता है वो किसका आता है, दैट इज विक्रम साराभाई का आता है स्पेस रिसर्च में। इनके बारे में मैं बताऊंगा भी आपको। ठीक है, होमी जहांगीर बाबा के बारे में भी बात करेंगे। और इसी कमेटी की इसी कमेटी ने जो रेकमेंड इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसे ही बड़ा किया गया और इसे इसरो बना दिया गया 1969 में। ठीक है, तो विद इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, देन डॉक्टर विक्रम साराभाई इज नोन एज फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। विक्रम साराभाई नोन एज फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। तो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है वो किसका रहा है, डॉक्टर विक्रम साराभाई का। ठीक है, तो विक्रम साराभाई के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इंडियन साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है, फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम भी बोला जाता है इन्हें। इसके अलावा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहां पर है। ठीक है, तो रिलेटेड टू इसरो ओनली। ठीक है, तो काफी सारे जैसे सैटेलाइट्स के पार्ट बनने हैं या सैटेलाइट बनने हैं उसका मटेरियल, ठीक है, फ्यूल, तो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसरो को असिस्ट करती हैं, तो वो कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे काफी सारी लैब्स भी हैं। ठीक है, तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इज वन ऑफ देम, सो दैट इज इन गुजरात अहमदाबाद। ठीक है, जिसको एस्टेब्लिश किया था विक्रम साराभाई ने ही। ठीक है, आफ्टर द सडन डेथ ऑफ होमी बाबा ही वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। और इन्होंने कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर आईआईएम अहमदाबाद को भी क्रिएट करने में मेजर रोल प्ले किया था। इसके अलावा इन्हें पोस्ट ह्यूमसली पद्म विभूषण भी दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, देन शांति स्वरूप भटनागर मेडल भी मिला था। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है विक्रम साराभाई। ठीक है, स्पेस से रिलेटेड विक्रम साराभाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम नोन एज विक्रम साराभाई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रॉकेट मैन, मिसाइल मैन, फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की लोकेशन अहमदाबाद। ठीक है, लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ कहाँ पर हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है सर, थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरला में है, एक और प्रपोज्ड है। ठीक है, कुलश्रेष्ठपट्टनम कहाँ पर है, टूटीकोरिन तमिलनाडु में। ठीक है, डॉग लेग मैनोवर के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये तीनों लॉन्चिंग स्टेशन इंपॉर्टेंट है हमारे हमारे लिए। यस और नो? तो चेयरमैन कौन है, के सिवान है, तो ये इंपॉर्टेंट नेम्स है हमारे लिए।
नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियर, सो दैट इज न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर बाबा, ठीक है। इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी एस्टेब्लिश किया था 1945 में, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन 1948, प्रमोटेड पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी पद्म भूषण मिला है इन 1954। तो इंपॉर्टेंट है कुछ नेम्स जो कि हमें ध्यान में रखने हैं, होमी जहांगीर बाबा, ठीक है, एंड फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, सो दैट इज विक्रम साराभाई। तो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं हमारे लिए। ओके, उसका लॉन्चिंग स्टेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। Now see, we have heard about these awards also, and related to awards, there are always questions asked. तो अगर मैं कुछ सिविलियन अवार्ड्स की बात करूं, सो यहाँ पर इंडिया में दैट इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स। सो ऑर्डर में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले दिया जाता है आपको भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, देन पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, सबसे नीचे आएगा पद्म श्री, देन पद्म भूषण, पद्म विभूषण, देन भारत रत्न। तो ये चार सिविलियन अवार्ड हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज भारत रत्न। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसका स्टैटिक भी पोर्शन पता होना चाहिए, और करंट में किसको मिला है रिसेंटली वो तुम्हें पता होना चाहिए, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो श्रीहरिकोटा की मैंने आपको लोकेशन यहाँ पर दिखाई है स्टूडेंट्स, देखो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, एकदम कोस्ट पर है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये इसरो की कुछ यूनिट्स हैं, इसरो की कुछ यूनिट्स हैं थ्रू आउट इंडिया, तो इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है यार, ठीक है। इसरो के खुद के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में देख सकते हो आप, दैट इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ठीक है, और काफी सारी यूनिट्स हैं। देन उसके अलावा, तो इस एक बार इस मैप को हम चेक कर लेंगे। देहरादून में देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंपॉर्टेंट है ये देहरादून वाला लोकेशन, ध्यान में रखना। देन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, एसएसी एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, पीआरएल एंड एसएसी दैट आर इन अहमदाबाद गुजरात, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बेंगलुरु का देख लो आप, इनसेट प्रोग्राम ऑफिस, तो मेन हेडक्वार्टर्स तो बेंगलुरु में ही है, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये भी काफी न्यूज में रहता है, तिरुवनंतपुरम, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। तो ये लोकेशंस एक बार तुम ध्यान में रख लोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ इसरो की यूनिट्स हैं अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी भी है इसरो से रिलेटेड, अगर मैं बात करूं, जैसे जो इंजीनियर्स हैं, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी भी है इसरो की, कहां पर, चंडीगढ़ में, ठीक है। देन नाउ वी प्रोसीड टू डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी जितनी भी डिफेंस फोर्सेज हैं उसको, जो हमारी मिलिट्री फोर्सेज हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी हमें वेपन्स जो हमारे लिए आई विल से डेवलप करता है, दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट इज डीआरडीओ, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, मिलिट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो मिलिट्री को जो वेपन्स चाहिए, ठीक है, न्यू वेपन्स डेवलप करने हैं, ठीक है, उनकी जो प्रोडक्शन है, सो दैट इज डीआरडीओ, ठीक है। कहां पर इसके हेडक्वार्टर हैं, दैट इज न्यू दिल्ली इंडिया में है। कब फॉर्म हुआ था, 1958 में फॉर्म हुआ था, ओके। और इसके चेयरमैन कौन है करंट में, दैट इज जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है करंट में, जी सतीश रेड्डी, सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके। तो डिफेंस के जो भी आपको प्रोडक्शन करना है, ठीक है, आई विल से जो भी आपके आर्म्स एम्यूनिशन हैं, ठीक है, टैंक्स हैं, तो उससे रिलेटेड कौन बनाता है, ये सारा का सारा कौन डेवलप करता है, दैट इज डीआरडीओ। या तो आप क्या करते हो, बाहर से बाय करती है गवर्नमेंट, और इंडिया में कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज डीआरडीओ। तो वेपन से रिलेटेड, सो दैट इज डीआरडीओ, ओके। तो सी अब टेस्टिंग कहाँ होती है, जैसे उसमें श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में होती है, तो यहां पर टेस्टिंग कहाँ होती है, जैसे, हाँ सी,
तो जितनी भी मिसाइल्स हैं हमारी, तो जितनी भी मिसाइल्स हैं और वेपन्स हैं, ठीक है, तो मिसाइल से रिलेटेड टेस्टिंग कहाँ होती है, कि मिसाइल्स भी डेवलप करता है डीआरडीओ, इसके अलावा और जितने भी वेपन्स हैं रिलेटेड टू आर आर्म्ड फोर्सेस को चाहिए जो, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो और जितना भी मतलब वेपन्स चाहिए, तो उससे रिलेटेड डीआरडीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सो दैट इज और इसके लिए जो मिसाइल्स की टेस्टिंग होती है, कि सर पृथ्वी मिसाइल है, नाग मिसाइल है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट डिफरेंट नेम्स ऑफ द मिसाइल्स, ठीक है, तो उसकी जो टेस्टिंग होती है वो कहां पर होती है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे कि पहले व्हीलर आइलैंड भी बोला जाता था, जो कि कहां पर है, ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, ओडिशा की कोस्ट पर है, दैट इज अब्दुल कलाम आइलैंड। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसे कि पहले व्हीलर आइलैंड भी बोला जाता था, ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल की यहाँ पर क्या करते हो आप, टेस्टिंग करके देखते हो। तो आप ऐसी लोकेशंस चूज करते हो जहां पर आपके पास साथ में क्या हो, पानी हो, ठीक है, सी हो, ओशियन हो, तो वहीं से आप क्या करते हो, सैटेलाइट्स लॉन्च करते हो, मिसाइल्स लॉन्च करते हो, टेस्टिंग करते हो उनकी, ठीक है, तो अगेन जो इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज ऑफ डेब्रीज, ठीक है। ये आइलैंड का नाम आपने किसके नाम पर रखा है, दैट इज इंग्लिश कमांडेंट लेफ्टिनेंट, दैट इज ह्यूज व्हीलर, so that is important। कब रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम, दैट इज 2015 में, ठीक है, टू ऑनर द लेट इंडियन प्रेसिडेंट। तो इंपॉर्टेंट है यार हमारे लिए, बे ऑफ बंगाल के पास है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, कौन सी स्टेट में है, दैट इज ओडिशा, जिसका फॉर्मर नेम व्हीलर आइलैंड है, जहां से आप मिसाइल्स की टेस्टिंग करते हो, ठीक है। अब रिसेंटली न्यूज में कुछ आई विल से कुछ पर्संस और भी करंट में न्यूज में रहे हैं, उन्हें एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। गूगल डूडल यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लाइक दिस। सो गूगल डूडल क्या है, एक स्पेशल टेम्परेरी लोगो है ऑन गूगल्स होम पेज, जो कि क्या करता है, किसको मेमोराइज करता है, कमेमोरेट करता है हॉलीडेज, इवेंट्स, अचीवमेंट्स एंड नोटेबल हिस्टोरिकल फिगर्स ऑफ पर्टिकुलर कंट्रीज। तो सिमिलरली इंडिया की तरफ से, तो ऐसे आप देखोगे यहाँ पर एक पर्सन को शो किया गया गूगल डूडल में, सो दैट इज यू आर राव, जिसको सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जिनको उडुपी रामचंद्र राव, उडुपी रामचंद्र राव, सो दैट इज इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस। तो गूगल डूडल ने इनको यहाँ पर कोमेमोरेट, याद करने के लिए यहाँ पे शो किया था, तो इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। कब की न्यूज है ये, दैट इज 10 मार्च 2021, ठीक है, और इनका 89th बर्थडे इस इन प्रोफेसर साइंटिस्ट का आपने क्या किया, सेलिब्रेट किया, ठीक है, सो दैट इज द न्यूज फॉर अस। तो गूगल डूडल के थ्रू क्या किया गया, जो यू आर राव है, जो कि फेमस साइंटिस्ट रह चुके हैं, जिन्हें ठीक है, और फेमस प्रोफेसर साइंटिस्ट रह चुके हैं इंडिया की तरफ से, उनको उनका जो 89th बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर गूगल डूडल पर उन्हें शो किया गया ऐसे। सो हु वाज यू आर राव, सो दैट इज इंडियन स्पेस साइंटिस्ट, जो कि चेयरमैन भी रह चुके हैं इसरो के, और इन्हें इंडिया का सैटेलाइट मैन भी बोला जाता है, इंडिया सैटेलाइट मैन, जिनकी डेथ हो चुकी है 2017 में। तो यू आर राव इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इंडिया सैटेलाइट मैन 2017 चेयरमैन ऑफ इसरो रह चुके हैं, क्या याद रखना है आपको, ठीक है, रिसेंटली गूगल डूडल पर उसे उन्हें शो किया गया उनका 89th बर्थडे, ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। So, students, these were some of the names so that I have discussed with you. And next time also I will meet you with some more news like this. Preeti Sinha was in news, and some more persons have been in news. So that is a WTO, World Trade Organization. ये भी news में रही हैं, ठीक है, ये important है question. So next time मैं इन्हें इन्हें भी cover करूंगा. Okay, then तो ऐसे काफी सारे पर्सन हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट टाइम कवर करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो अगेन ये जो लेडी है, इसे मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ कवर करूंगा, ठीक है। तो ये हुज हु ऑफ इंडिया और अदर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पर्सनालिटीज, उसको हम कवर करेंगे, ताकि हम किसी भी क्वेश्चन को फ्रॉम करंट, फ्रॉम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू उसे अच्छे से कवर कर लें, और इसमें से आपको पता है कि क्वेश्चन विल ऑलवेज बी आस्क्ड। So thank you, students. Thank you. Keep watching your pedia. Okay, and keep preparing. And thanks once again.
So I will share this PDF in description of this video. Thank you very much.